Good morning everybody, I hope you may be fine, and today we will start our lecture number 17 part 5th, and lecture number 17 part 5th deal with modal verb as can and may. Before starting our lecture, first we have to know about the modal verbs. Let's first we discuss the modal verb. The verbs put before the main or ordinary verb express permission, possibility, certainty, capacity or request etc. is called the modal verb. It means all those verbs who come before main verb and express permission, possibility, certainty, capacity etc. is known as the modal verb. For example, let can is modal verb, could, may, might, will, would, shall, must, out. These are the modal verbs because they express permission, possibility, certainty, capacity, and request, order, advice, etc. So these were our modal verbs. Now we come to our point, modal verb as can. What is can and where we use the can? Number one, ability or capability. Where we have to express ability and capability of any person, anything, then we use their can. Like for example, I can play cricket. What I can play cricket means it has a person, I has ability to play cricket. Again, he can swim, means he has a capacity to swim. So any sentences in which we have to express the ability or a capability of any person or thing, then we will use their can. The second point is permission. If you will have to discuss the permission, any person who want to get a permission, then we will use their can. Like you can go now. You can go now means he is giving the permission to any person. Again here, can I borrow your umbrella means he are going to take a permission borrowing the umbrella. Now the main thing is that the permission, their thing is informal. The informal is very important point with respect to the permission with respect to the usage of can. Now we will discuss and differentiate the informal and informal ahead in the similarities and dissimilarities of can and may. Now we come to a point 3, the possibility. What is possibility? Means the possibility, if we will have to show the possibility happening of anything, anyone who want to, there is a possibility to do anything, take any action, there we will have to use a can. But the condition is that the possibility, the sentences must be in a negative or interrogative form. Just like for example, can this be true? Means this is example, can this be true? Means there's a possibility, there's interrogation, that is this true? Can this be true? Similarly again, this cannot be true. There's negative sentence. First one is interrogative and the last and second one is negative sentence. It was a can which we have used and which we have discussed. Now we come to may. Number one, first, may use for the wishes and pray. If you want to express your wish to pray for anybody, anyone, then we will use their may. Like for example, may success attend you. Now the second point is permission. If we have to discuss the permission, you want to give a permission to anybody, then we will use a may. Now again I want to say here, there is a big difference between the permission with respect to the can and may, that is informal and formal and informal. And now we will differentiate the formal and informal
or a usage of formal info and informal ahead in the differences between or similarities and dissimilarities between can and may, which we will discuss ahead. Now the example of the permission is that he may go now. This permission is informal condition. This permission is a informal condition. And the may he borrow you umbrella means you have to keep in your mind that the permission must be formal with respect to usage of may. And number third is possibility. We use it for a possibility if the sentences are affirmative. What may be? Like for example, this may be true. The sentence is affirmative, means a positive sentence. Now the fourth one is point is destiny or a reason, means in any sentences we want to show a reason, to show the destiny, then we will use their may. Like for example, he work hard. He work hard means the reason he work hard. Why he work hard? So that he may pass. The reason is he may pass. For the passing he works hard. So this is the fourth most important point of may. Now we come to similarities. What is the similarities between the can and may? Like number one, permission. With respect to can, the permission is used here in the form of informal. What is formal and what is informal? Now we will discuss here. The informal one. In informal we use active sentences, direct sentences, oral speeches, debate, direct communication. There we will use informal. These are called informal. If the permission is informal, then we will use their can. Just for example, you can go now. These are called these mostly such kind of words and such kind of sentences used in direct communication, in dialogue, in discussion. That is oral based sentences. Now we come to may. Number one, may what the permission is formal. The formal sentences are those which are in written form, in which the matter is important, the matter is focus, not a subject is focus. Mostly the passive voice are used here, indirect sentences are used here. In these sentences we will have to use passive voice, and we will have to focus the objective and neutral sentences, not to a subjective sentences. That is a big difference between the formal and informal. Now again, the second similarity between the can and may is the possibility, and for the possibility we can also use the can and also may. So what is the difference? Means this is a similarity, means a possibility, here we use the possibility there, but there is a minor difference, means there is a condition if we will use the possibility. If the possibility we use there a negative sentence and interrogative sentences, then we will use can for that. If we will use the positive and affirmative sentences, then we will use may. Now we come to the dissimilarities. What is the dissimilarities between the can and may with respect to their usage? Number one, first most important point is that ability. For the can, ability, for any ability, a capability can is used. May cannot be used here. And now we come to may. If the wishes, we have to express the wishes or pray, then we will use may. Can cannot be used here. And the second point of the may is the destiny. If you want to show your destiny, a reason, then we will use may there. I hope you may understand it. If you have any kind of difficulty with respect to my lecture, then you can ask me, commit me, and take care of your health. Remember me in your prayers.
गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 5। लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 5 डील करता है हमारा मॉडल वर्ब एज कैन एंड मे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम लोगों को मॉडल वर्ब के बारे में जानना ज़रूरी होगा। मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब से मतलब हम लेक्चर नंबर 17 के शुरू में ही इसे पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा हम यहाँ रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मॉडल वर्ब हमारे पास क्या है। द वर्ब पुट बिफोर द मैन एंड ऑर्डिनरी वर्ब एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, कैपेसिटी और रिक्वेस्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड द मॉडल वर्ब। यानी कि हमारे वो वर्ब जो मेन वर्ब से पहले आएँ और एक्सप्रेस करें और ज़ाहिर करें कोई भी परमिशन, पॉसिबिलिटी इम्कान, सर्टेनिटी यकीन, कैपेसिटी सलाहियत, रिक्वेस्ट यानी कि कोई दरख्वास्त, इस टाइप की यानी कि जितनी चीज़ें कोई भी अगर एक वर्ब हमें एक्सप्रेस करता है तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? जैसे कैन हो गया है, कुड हो गया है, मे हो गया है, माइट हो गया है, विल है, वुड है, शेल है, मस्ट है, आउट है। यानी कि ये जितने भी वर्ब हैं मॉडल वर्ब कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मॉडल वर्ब क्या है, किसकी बात करनी है हमें यहाँ पे? कैन एंड मे। कैन एंड मे, सबसे पहले हम कैन एंड मे से मुतल्लिक जानेंगे, उसके बाद फिर इसकी जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इसकी सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कैन। कैन क्या है हमारे पास? नंबर 1, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। ऐसे जुमले जिनमें आपको किसी की एबिलिटी या कैपेबिलिटी बतानी हो तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कैन। जैसे कि आई कैन प्ले क्रिकेट, ये क्या है? आपकी एबिलिटी है, वो अपनी एबिलिटी बता रहा है यहाँ पर। आई कैन प्ले क्रिकेट यानी कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इसी तरीके से नीचे दूसरा जुमला है ही कैन स्विम, यानी कि यहाँ भी देखें उसकी एबिलिटी की बात हो रही है कि ही कैन स्विम, यानी कि उसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो स्विम कर सकता है, यानी कि तैर सकता है। यानी कि जहाँ हमें अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात करनी हो किसी भी शख्स की तो वहाँ हम कैन यूज़ करेंगे। ये है नंबर 1 यूज़। नंबर 2 हमारे पास क्या? परमिशन। जहाँ पे हमें परमिशन की बात करनी हो, यानी कि परमिशन देनी हो या परमिशन लेनी हो, तो वहाँ भी हम कैन यूज़ करते हैं। जैसे कि यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपकी छतरी उधार ले सकता हूँ। ये जो है हमारे पास परमिशन। जहाँ परमिशन के साथ बराबर में लिखा हुआ इनफॉर्मल, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का एक बड़ा डिफरेंस है। ये मैं लेक्चर के आगे मैंने इसको डिफ़ाइन करूँगा, इनफॉर्मल कौन से होते हैं और फॉर्मल कौन से होते हैं, जहाँ ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास? पॉसिबिलिटी। ऐसे जुमले या ऐसी स्टेटमेंट जहाँ हमें कोई नेगेटिव बात करनी हो या हमें सवालिया जुमले बनाने हो तो भी वहाँ हम कैन लगा सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है, कैन दिस बी ट्रू, यानी कि क्या ये सच हो सकता है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, क्या ये सच नहीं हो सकता। यहाँ हमारे पास क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमले अगर हमें बनाने हो तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं ज़रा मे से मुतलिक, उसके मुतलिक जानते हैं कि मे के में हम कौन कौन से जुमले बना सकते हैं। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास? विश, और क्या हमारे पास? प्रे। अगर कहीं हमें अपनी विश की बात करनी हो, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करना हो या फिर किसी को दुआ देनी हो या दुआ लेनी हो तो वहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, मैं सक्सेस अटेंड यू, यानी कि आपको वो दुआ दे रहा है, यानी कि अल्लाह आपको क्या करे? कामयाबी दे। इस तरीके से जितनी भी विशेष या प्रे की बात होगी वहाँ हम मे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है? परमिशन। परमिशन के बराबर में क्या हमारे पास? फॉर्मल लिखा हुआ है। फॉर्मल और इनफॉर्मल से मतलब में जब डिफरेंसेस हम आगे जाके डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंसेस में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के मतलब डिफरेंस जानेंगे तो आपको ये परमिशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ हमें सिर्फ इतना जानना है कि परमिशन के लिए भी मे यूज़ होता है। जैसे ही में गो नाउ, ख्याल रखिएगा अपनी दुआ में, वो अब जा सकता है। मैं ही बोरो योर अम्ब्रेला,
क्या वो उसका अम्ब्रेला उधार ले सकता है। इससे मुतलिक माइनर डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे जाके डिफरेंसेस में कवर करेंगे। नंबर 3 है हमारे पास पॉसिबिलिटी। यहाँ भी हमें मैं पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या, हमारे पास अफर्मेटिव अगर आपके जुमले होंगे यानी कि पॉजिटिव जुमले होंगे तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी में वहाँ मे यूज़ करेंगे। दिस मे बी ट्रू, यानी कि ये सच हो सकता है। नंबर 4 है हमारे पास डेस्टिनी या रीज़न। ऐसे जुमले जिसमें हमें कोई अपना मकसद बताना हो या कोई वजूहात बतानी हो, तो ऐसे जुमलों में भी हम मे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ही वर्क्स हार्ड, वो क्यों मेहनत कर रहा है, वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। अब देखें रीज़न दिया हुआ है, वो मेहनत क्यों कर रहा है, ताकि वो पास हो जाए। इस टाइप के अगर आपको रीज़न देने हो या डेस्टिनी अपना मकसद बताना हो तो वहाँ भी हम मे यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब ज़रा इससे मुतलिक जानते हैं डिफरेंसेस क्या है, यानी कि डिससिमिलरिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यूजेज। यानी कि यूजेज के हिसाब से मे और कैन के दरमियान जो कुछ कन्फ्यूजन है उनमें फ़र्क क्या, डिससिमिलरिटी क्या है, हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमें परमिशन कहाँ यूज़ करनी होगी और पॉसिबिलिटी। तो चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस में सबसे नंबर 1 पे हमारे पास है क्या, परमिशन। अब परमिशन में हमें सबसे पहले जानना होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है और फॉर्मल कौन सी। इनफॉर्मल में मुराद हमारी वो लैंग्वेज होती है जो हम ओरली बोलते हों, ओरली या कन्वर्सेशन वगैरह करते हो, या डायलॉग वगैरह या कम्युनिकेशन अगर आपस में करते हैं ओरली, ऐसी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसे इनफॉर्मल कहा जाता है। और फॉर्मल हमारी वो लैंग्वेज होती है जो हम ऑफिशियली यानी कि रिटन में यूज़ होती है। जैसे न्यूज़पेपर में तकरीबन आपने एडिटोरियल वगैरह देखे होंगे, कॉलम देखे होंगे, तो वहाँ जो लिखे होते हैं या आपकी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट वगैरह होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ जो हमारे पास लैंग्वेज यूज़ होती है फॉर्मल होती है। इसमें फ़र्क ये होता है कि इनफॉर्मल में हम डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट बात करते हैं, इनडायरेक्ट बात नहीं करते हैं। यहाँ इनफॉर्मल में हम सब्जेक्टिव बात करते हैं कि यानी कि किसने बात कही है, ये हमारे लिए सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट अहम होता है, हमें सब्जेक्ट को शो करना होता है, तो वहाँ हमारे पास ये इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगी। बाकी हमारे पास जो फॉर्मल है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में हमें सब्जेक्टिवली हमें न्यूट्रल जुमले बनाने होते हैं, ऑब्जेक्टिव जुमले बनाने होते हैं, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को, मैटर को वहाँ फोकस किया जाता है ना कि सब्जेक्ट को। और मोस्टली यहाँ पर हमारे पास पैसिव जुमले बनते हैं और इनडायरेक्ट जुमले बनते हैं। तो अब आपको ये फॉर्मल इनफॉर्मल समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अब आपको परमिशन में भी फ़र्क समझ में आ जाएगा। अगर हम परमिशन की बात करेंगे कैन के हवाले से, तो अगर हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी, इनफॉर्मल तरीके से हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर कैन यूज़ करेंगे, यानी कि जैसे कि यू कैन गो नाउ। मोस्टली ये इनफॉर्मली ऐसे जुमले बनाए जाते हैं। और अगर हमें इसी तरीके से यही जुमला अगर हमें फॉर्मल बनाना हो, यानी कि रिटन लैंग्वेज में लिखना हो, ऑफिशियली ये बात करनी हो हमें, तो फिर हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ही मे गो नाउ या मे ही बोरो योर अम्ब्रेला। इस टाइप के हमारे पास जुमले बनेंगे। ये था हमारे पास परमिशन से मुतलिक। अब हम चलेंगे, जानेंगे नीचे पॉसिबिलिटी से मुतलिक बनाएंगे कि पॉसिबिलिटी देखें, अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव, इंकारिया या सवालिया जुमले अगर हम लोगों को बनाने हों तो वहाँ हम कैन यूज़ करेंगे, और अगर हमें पॉजिटिव जुमले सिर्फ बनाने हो तो वहाँ पर हम, अफर्मेटिव जुमले अगर बनाने हो तो वहाँ पर हम सिर्फ मे यूज़ करेंगे। ये था इन दोनों में डिससिमिलरिटीज़, यानी सॉरी ये थी हमारे पास सिमिलरिटीज़। जो परमिशन हम जान चुके हैं कि परमिशन भी यहाँ है, वहाँ भी परमिशन है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न थी इन दोनों के दरमियान के और मे के यूजेज से मुतलिक, जो हम जान चुके हैं। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी है। अब ज़रा हम चलते हैं, जानते हैं डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। डिससिमिलरिटीज़ पे नंबर 1 हमारे पास क्या है, एबिलिटी। यानी कि एबिलिटी क्या है हमारे पास, अगर हमें एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात करनी हो तो वहाँ हम कैन यूज़ कर सकते हैं, मे यूज़ नहीं होगा। यानी कि ये टोटली डिफरेंट है मे से। अब वो जहाँ हमें अगर विश या प्रे की बात करनी होगी तो वहाँ हम मे यूज़ करेंगे। ये डिससिमिलरिटी देखें, कैन में ये ऑप्शन नहीं है और मे में है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यानी कि डिससिमिलरिटी है, वो है हमारे पास डेस्टिनी या रीज़न के लिए कैन यूज़ नहीं होता है, सिर्फ मे यूज़ होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस कैन और मे से मुतलिक आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, आप जान चुके होंगे अच्छी तरीके से, और इसकी डिससिमिलरिटीज़ भी आपको पता चल गई होंगी और सिमिलरिटीज़ भी जान चुके होंगे आप लोग।
उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता काइंडली आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।